Okay, now we will talk about do's and don'ts of corporate identity. Just now, we discussed about, like earlier, we have discussed about corporate identity. Corporate identity is a combination of color scheme, values, things to be there with products and services. So it is also included logo, symbol, the slogan, etc. for the corporate identity. Along with, we have seen when we were going through with the feature of that. So envelope, letterhead, वगैरह हमने देखा. That is the part of the corporate identity. Now, what are the things? If you are a manager over there in a company organization, you are a CEO. Uh, you tend to go ahead with do's and don'ts of corporate identity. तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Like what do's are there? Number one, the personality of the corporation has to be captured completely and authentically. Whatever the personality of your company, your organization, that has to be properly, authentically, you have to capture with corporate identity. चाहे वो color combination हो, चाहे वो weightage हो, चाहे वो value हो. For example, रॉयल इनफील्ड का नाम सुना है? रॉयल इनफील्ड. When you are representing Royal Enfield, it is very heavy. It should be, uniqueness on the basis of heaviness and toughness. तो वो toughness present होके आना चाहिए in your words. पहले एक गाड़ी आती थी बुलेट, right? So वो एक heaviness, strong identity have to be presented. That is why it is named as bullet. So वो आपके लोगो वगैरह में शो होना चाहिए. सेकेंड, आइडेंटिटी शुड अपीयर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. योर आइडेंटिटी, ये नाम आते ही अरे हाँ यार ये है. when we say maza, okay, automatically that advertisement concern, or sometimes that we are able to understand about that Katrina Kaif to the maza का advertisement जो कर रहे हैं, okay, बूंद बूंद में, and वो बॉटल के अंदर कैटरीना कैफ टू बी देयर. Okay, so वो spontaneous होना चाहिए. When I say example of, say, this one, thumbs up, so strong feeling immediately has to come. Thumbs up means strong cold drink. When somebody will going through with the thumbs up, automatically it means to, it tends to, he is a strong man. Okay, so these are the things. माउंटेन ड्यू बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस का. डर के आगे जीत है. So डर के आगे जीत है, that means you are a powerful guy. Okay, so that is the presentation related with the corporate identity. Next one is the concept should be unique. Unique का मतलब यही है, it should be new or novel. Nobody ever earlier utilized that particular identity. Okay, so it should be something unique, something new to be over there. Have you heard about that paper boat? Different flavors are there. तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा they have utilized some packaging in such a way that packaging you can utilize or rebold as such. Okay, it is not harmful for the environment, so it is a easy way of the packaging. Number one. Second, some pulp we are able to find out uniqueness, pulp of that particular fruit. तो वो फील होता है कि फ्रेश है काइंड ऑफ ना, या तो हम ताज़ा ताज़ा जूसेस पी रहे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े पल्प हो जाते हैं. ओके, ऑरेंज पल्प ही आपने देखा होगा, जिससे उसमें उन्होंने पल्प वगैरह यूटिलाइज किया है. In corporate identity, when you are representing, you always do this one. You have to see another important do is be strong. So whatever you are representing, whatever you are giving it back to the society, it has to be very strong on the basis of the content. Okay, वो कौन सा है अपना हाकिम आलिम ना, हाकिम हाकिम का वो बार्बर है बंदा. देयर आर सो मेनी बार्बर्स अवेलेबल ओवर देयर इन द मार्केट. लेकिन हाकिम आलम का अगर मैं बात करूँ, एल ए 18 वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रांड्स की बात करूँ, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप इस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इट इज़ द बेस्ट ब्रांड यू आर यूजिंग. वुडलैंड सुना है? वुडलैंड शूज़ का. तो उसका स्ट्रॉन्गनेस और परफेक्शन क्या है, दैट व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वुडलैंड काइंड ऑफ शूज़, इफ यू आर परचेसिंग, तो भूल जाओ कि 5 साल 4 साल के लिए वो शूज़ आपको पहनना ही पहनना है. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड सचिन, he purchased that one,
और ही वाज टेलिंग मी भाई 5 साल तक वही रेगुलर पहन पहन के मैं ही थक गया, अब मैं ही उसको चेंज कर रहा हूँ भाई, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। मतलब आई यू गेटिंग सच काइंड ऑफ स्ट्रांगनेस, जैसे मैंने स्टार्ट में रॉयल इनफील्ड वगैरह बुलेट वगैरह का नाम लिया। ओके, ये सब स्ट्रांग चीजों को बिलीव प्रेजेंट करते हैं। थिंक ब्रॉडली मीन्स ऑल अदर फैक्टर्स टू बी देयर that can be helpful for overall business point of view. Now take example of theaters. Theaters का main business कहाँ से होता है? मूवी से होता है क्या? नहीं, the food products that they are selling from that particular theater, उससे उनका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब आप सोचो ना, एक 10 रुपए का कॉर्न लोग थोड़ा सा उबाल के थोड़े मिर्च मसाला लगा के 150 रुपए में दे रहे हैं। हाँ, 100 रुपए में दे रहे हैं। बाहर से मैं एक 10 रुपए का कॉर्न खरीद के जाऊँ तो उसके 10 कप्स बना दूँ। हाँ, मतलब 2 रुपए का कॉर्न और 100 रुपए में लो। वो समोसे जो उन लोग 100 में 2 देते हैं और थोड़ी सी चटनी देते हैं, वो मेरे ख्याल से समोसे 20 रुपए के भी नहीं होंगे, वो भी अलग सा टेस्ट है। और हमारे यहाँ पे जो समोसे हम खाते हैं उससे तो बकवास सा एक सीधा टेस्ट आ रहा है। हाँ, माटुंगा से उठा के मंगा लिया है भाई, बस दे दो, आदमी खुश रहे। थोड़े से आलू डाल दिए, आप खुश रहो। आलू मैं ही लेके जाऊँ क्या यहाँ से घर से? सो थिंक ब्रॉडली इज, ये जो कॉर्न है या पेप्सी है या वेज नॉन वेज स्टफ है, स्कूप्स है, आइसक्रीम है इन द थिएटर, ये ब्रॉडवे थिंकिंग है। मतलब अगर आप मूवी देखने आ रहे हो पहली बार, कि इधर यू विल गो विद फैमिली और द फ्रेंड, सो यू आर गोइंग ओवर देयर फॉर द फन, तो आप कुछ खाएंगे तो वॉट एवर रेट इट इज अवेलेबल यू हैव टू परचेज। दिस इज ब्रॉड वे of identity of the corporate, so people tend to buy ना। वहां से बाहर थोड़ी जाके कि मैं बाहर जाके लंच लेके आता हूँ, लंच लेके खाते खाते मूवी देखा, तो भाई घर पे बैठो तब लंच लेके आता हूँ। ओके, हाँ नहीं, बीच में अलाउ हो गया था, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन कौन लेके जाएगा ये तो सोचो। जब 10 लोग वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे होंगे और कौन खा रहे हैं वहाँ का, या पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और हम वहाँ पे क्या चपाती और टिफिन निकाले, चपाती और माँ ने भाजी दिए, टमाटर की भाजी और भांटे की भाजी, और मैं वहाँ पे खाऊं फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आई एम यूपियन, मैं वहाँ पे कलौजी निकल के खाने चालू करूँ, अगल बगल पूरा ऑयल ऑयल पूरा होने लगे, मुझको खुद को ऑकवर्ड लगेगा भाई। ठीक है, और दूसरे लोग जो निगाह से देखेंगे वो तो ऐसा लगेगा कि तुम इस दुनिया से मतलब बियॉन्ड हो। हाँ, एलियन हो गया हूँ मैं वहाँ पे। सो खुद ही नहीं खाएंगे हम। थिंक ब्रॉडली, दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, करने वाले कर सकते हैं, हम अगर चाहें 8 4 5 लोग की, मैं तो वैसे ही करूंगा, खाना खाने आगे बैठ जाऊंगा, सबसे आगे चेयर के जाके हम लोग 4 जन घेरा करके बैठ सकते। कौन बोलेगा? वहाँ पे बोलेंगे भाई जिसको जो करना है करो, मूवी चालू होगी प्रणाम करके वापस सीट पे बैठ जाएंगे, व्हाटएवर। So think broadly about your prospect of corporate identity. Set yourself a test. ये बहुत सही है, important है, do's है। Like you have to set yourself a test कि what your product is, how it is useful as such to be, it is useful or not useful, okay, in any particular area. What type of consumers to be there in any particular area. So उनके लिए कैसे use होगा नहीं होगा, अपने product में ही आप कंपटीशन करो। देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना, चेंज करते रहना पड़ेगा आपको। यू शुड डू कंपटीशन फ्रॉम योरसेल्फ एंड मेक श्योर टू कम अप विद द न्यू पैरामीटर। लाइक टाटा का वन स्लोगन इज देयर, द बेस्ट येट टू कम। So they regularly work on that particular ideology. They make sure there should be some changes regularly. What don'ts you have to do? You have to go through as a manager, not have one at all. You should know, एक ही में सारे कलर कॉम्बिनेशन मत डाल दो भाई, हर एक कलर डाल दो। हम लोग क्या परेड करने जा रहे हैं क्या? सारे कलर्स होने चाहिए? नो नीड फॉर दैट। Only you have to decide 1 2 color, whatever 3 colors match to match. Okay, or that should be related with your identity. Those things you have to do. सब करने मत जाओ कि थोड़ा कलर भी होगा, बहुत सारे 4 5 कलर होंगे, पिक्चर्स होंगे, फ्लावर भी है, चिड़िया भी है, बारिश भी है, तो भाई पेंटिंग कर लो अब बेटर। confuse it with product, because you should not confuse your product, your brand in front of others, क्योंकि बहुत सारा कॉम्बिनेशन यूज कर लिया तो लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फेसबुक का एक कलर एफ देख गया, हमको समझ में आ गया, एफ और ब्लू कलर दिख गया, व्हाइट कलर, हम समझ गए ना फेसबुक की, और कुछ समझते हैं।
जो और समझ रहा है मतलब वो गधा है, बिकॉज ही हैज नॉट क्रिएटेड अ कंफ्यूजन। ओके, आपको उतना समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज building a confederation. You should not do a building a confederation means different pointers, especially the ideas related with the identity, it should not merge all together. Confederation means merge with all together, simple और straight होना चाहिए। कॉन्फिडरेशन में एक और पॉइंटर आता है, इट शुड नॉट बी सिमिलर विथ अनदर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो देख के सेम सेम नहीं लगना चाहिए कि दूसरी कंपनी का भी ऐसा ही है। अभी जैसे फैन की कंपनी है तो ऑल फैन वाले वो पंखे तो लगाएंगे ही ना एज ए लोगो टाइप ऑफ, लेकिन अगर आपका क्रॉम्पटन है तो ये ग्रीन होगा, ग्रीन एंड व्हाइट है, उषा होगा तो दूसरा कलर होगा, अनदर कंपनी होगा तो तीसरा कलर होगा। सो ओनली वन कलर दे प्रेफर टू प्रेजेंट, सो आपकी कंपनी इजिली रिकमेंड हो सकती है। अदरवाइज फैन तो फैन ही होगा ना भाई, फैन तो सबका एक जैसा ही होगा। सो बिल्डिंग कन्फिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर्स, not on the basis of the fan design. Straying too far from the market, don't this you should not do। and corporate identity, आप market से बहुत दूर नहीं जा सकते, मतलब you cannot stop advertising of your products and services। at least in a year you have to make a time period when you are going to advertise, which will be helpful to remind your products and services। take example एक देता हूँ, जब आप लोग छोटे थे, मतलब मैं काफ़ी दिनों से मैं ये ऐड नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, उसमें एक टूथपेस्ट है बबूल, बबूल दंत मंजन, डाबर का है, डाबर का है। उसके ऐड गायब हो गए हैं, लेकिन वो दुकान में मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि वो मार्केट से दूर जा रहा है, जो ऐड ही नहीं आएंगे तो लोग भूल जाएंगे ना भाई। डाबर लाल दंत मंजन, बबूल दंत वाला जो है, तो लोग भूल जाएंगे। वीको वाला देखो कितना स्मार्ट है, आलिया जी को लेके वापस से आया। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से हटना नहीं चाहता था। थिएटर्स बंद हो गए हैं, थिएटर में आता था, अभी थिएटर बंद है 6 महीने से, तो हम चलो ठीक है कुछ टाइम का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेट पीपल नो अबाउट माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आलिया जी आके बोल रही हैं वीको का इस्तेमाल करो। So these are the don'ts that we have to take care। समझ में आ रहा है everyone, do's and don'ts of corporate identity? Hopefully you will able to understand it easily। Thank you very much।